issue procedure that we are going to discuss today. Or as you all know that there are a system of material issue, pricing issue. First we receive the material and then we will issue the material as per the requirement of the concerned departments. If systematic procedure is followed by the issuing this material, and after issuing the material there is some balances kept by the department, store department, and it will be recorded in balance in store ledger. So we have some methods for issuing these materials, that is known as cost pricing methods of materials, that we are going to discuss one by one. First we will cost of pricing of material issued. First one is FIFO, that stands for First in, first out. first in, first out. Second one is LIFO. LIFO, Last in, first out. last in, first out. Third one is FIFO. And fourth one is average price methods. And fifth one is inflated price. Sixth, specific price. And seventh one is base stock price method. The first method, that is FIFO, under the FIFO system, we will see that how we are going to maintain the store ledger account in under the method of FIFO. It means the quantity that are received first in the store department, that is to be issued first. Say for example, 400 units at rate of rupees 10 were received for rupees 4,000, and there is demand from our department for a material of 200 units. So we will issue 200 unit out of 400 unit at the rate of rupees 10 per unit. This is an example of one type of material is there. If there is two type of material, 400 units there, another unit has been received, that is 300 by a rate of 5 per unit. It means you have two type of material, that is 400 units at the rate of rupees 10 per unit for 4,000. Yes. Another type of material, that is 200 units at the rate of rupees 15 per unit. And say for example there is a demand of 300 units from a particular department. How you are going to issue under this FIFO method? We will issue first the material out of 400 units. जो भी हमें 300 यूनिट बेचनी है वो हमें 400 में से बेचनी है, इशू करनी है, और बैलेंस जो है हमारे बैलेंस में चला जाएगा। और अगर हम कहते हैं कि देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 500 यूनिट्स, देन
400 units first will be issued, then 100 will be issued out of 200 at the rate of 15 per unit. This will be the issue procedure. Let us see that how we are going to prepare a store ledger under the method of LIFO, FIFO, LIFO, HIFO, average or inflated price. Say we will take an example to understand this problem. I am going to clean it. The received side of store ledger shows the following particulars. आप store ledger बनाएंगे इस प्रकार से. और मेथड है आपका FIFO मेथड. सबसे कॉलम जो प्रिपेयर किए जाएंगे क्या क्या? सबसे पहले डेट, इसके बाद रिसीप्ट्स, इशू, और रिसीप्ट के अंदर भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. क्वांटिटी, रेट अमाउंट. और अमाउंट, ये 3 कॉलम हो गए. Same will be followed in issue. एक बोले क्या ना हमारा डिपार्टमेंट से इसमें क्या होगा? वही 3 कॉलम क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. Same will be in the balance. Yes, sir. Quantity, rate and amount. ये इधर से क्लीन कर देते हैं. So what you see that yes, you will see both the receipts and issue procedure. आपने दोनों ही चीज़ों पर ध्यान देना है कि आपकी रिसीप्ट ऑफ मटेरियल की क्या पोजीशंस हैं एंड हाउ मच इशू एट व्हाट डेट्स. डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने दोनों जगह पर डेट्स देखनी है, रिसिप्ट्स में भी और इशू में भी, कि अगर डेट्स की अगर किसी डेट पर आपको रिसिप्ट भी है और इशू भी है तो दोनों को कंसिडर करना है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. द पोजीशन इज फॉर Jan 1st 2015. There is a opening balance of 1000 units. Opening balance means quantity, receipt of material is not affected at all. यहाँ कुछ नहीं आएगा. Means you will mark a dash here. कितना मटेरियल है? The material is for 1000 units. Opening balance. और रेट क्या है? Rate is ₹2 per unit. ₹2 per unit. It means amount will be 2000.
आफ्टर दिस अब जनवरी 1 के बाद आता है जनवरी 5। जनवरी 5 वो भी किसके अंदर है? इशूड ऑफ मटेरियल के अंदर है। 400 यूनिट्स वर इशूड Jan 5। वो इसमें कुछ नहीं आएगा रिसिप्ट के अंदर। अब यहाँ पर इशू में आएगा 400 यूनिट्स वर इशूड और उसका रेट कितना आएगा? 2। इट मीन्स 800। Remaining is the balance. You will minus this one, this quantity from out of quantity and amount from this. It means balance will be rupees 2 per unit. It means 1200. अगले डेट्स पर मूव करते हैं। नेक्स्ट डेट है आपकी जनवरी 6। रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर 400 यूनिट्स रिसीव हुए हैं हमारे पास Jan 6। हम और आपकी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कितना है? 400 यूनिट्स आए हैं। रेट है 2.5 पर यूनिट्स का। 1000 हो गया। यहाँ कुछ नहीं आएगा, एज इट इज बैलेंस आएगा। और आपका 400 यूनिट्स 2.5 इट मीन्स 1000। अब ये क्या करेंगे? इस तरह से ब्रैकेटेड में कर देंगे कि दिस फिगर इज रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर डेट। इसके बाद क्या करते हैं? अगली तरफ मूव करते हैं। जनवरी 6 के बाद नेक्स्ट डेट आती है आपकी जनवरी 10। जनवरी 10 में क्या हुआ है? यू आर अगेन गोइंग टू इशू। जनवरी 10 में क्या है? यू आर गोइंग टू इशू 800 यूनिट्स। इसमें कुछ नहीं आएगा, 800 यूनिट्स इशू करनी है। कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं? फीफो। इसका मतलब जो क्वांटिटी आपके पास पहले आई है वो पहले इशू होगी। तो इसका मतलब 600 यूनिट्स इसमें से लेंगे और 200 यूनिट्स इसमें से लेंगे। तो जो इशू होगा वो क्या होगा? 600 at the rate of rupees 2, 800 and it means 200 units at the rate of rupees 1200 आएगा। right। ये 1200 आएगा और ये हो गया आपका 400। ठीक है। इसके बाद अब बैलेंस कितने बच गए आपके? 200। ये आपके 2.5 है, ये भी आएगा 500। यहाँ पे आपके हो गए 200 यूनिट्स 2.5, that is 500 is the balance. Say for example it is a LIFO method. अगर हम मान लें कि ये आपका LIFO मेथड होता, इसी केस में ले लेते हैं LIFO होता, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या है कि जो मटेरियल आपका बाद में आया है स्टोर के अंदर दैट इज टू बी इशूड फर्स्ट। हमने 800 यूनिट्स इशू करने हैं तो इट मीन्स 400 यूनिट्स इशूड एट द रेट ऑफ 2.5, 1000 रुपीज़ की यहाँ पर आती। उसके बाद 400 अगेन दैट इज टेकन फ्रॉम दिस, तो रेट के हिसाब से 800 यहाँ पर और आ जाती। अब बैलेंस बच जाता कितना? 200 और रेट क्या है? 2 रुपये। तो इसका मतलब क्या होता? 400 रुपये का जो है बैलेंस बच जाता 200 यूनिट का। ये क्या था? लीफो। तीसरा और बात करते हैं हीफो। हीफो में क्या करना था आपने? हीफो क्या कहता है? हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। जो जिस भी मटेरियल की वैल्यू हाईएस्ट होगी दैट आर टू बी इशूड फर्स्ट आउट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्रकार के मटेरियल है, ये एक का रेट है 2.5 और दूसरे का रेट कितना है? 2। तो इसमें से दोनों हाई कितना है? 2.5। तो अगर हमें 800 यूनिट इशू करनी है तो सबसे पहले 2.5। इट इज अ लकी कि ये जो रेट है अगर हम लीफो में भी देख रहे हैं तो पहले यही आ रहा है। अगर मान लो ये रेट इसमें मान लो अगर ये फॉर एग्जाम्पल 5 रुपये होता तो सारी की सारी यूनिट इसमें से ली जाती, इसमें से ली जाती पहले। हाँ, तो रेट देखना है आपने। इसके बाद अगर तीसरा मेथड बात करें क्या है? एवरेज स्टॉक। इस एवरेज स्टॉक के अंदर
क्या प्रोसीजर अप्लाई होगा इशू का कि जो आपके पास रेट ऑफ मटेरियल अवेलेबल है, मान लीजिए आपके पास कितनी यूनिट्स अवेलेबल, दो प्रकार का मटेरियल है, तो उन दोनों रेट्स को ऐड करोगे और जितनी भी क्वांटिटी और मटेरियल अवेलेबल है 1 और 2 जो भी 3 है उसमें से डिवाइड करोगे। मान लीजिए ये दो आपके टू टाइप्स ऑफ मटेरियल 2 + 2.5 और डिवाइड बाय 2। और फॉर एग्जांपल इसमें एक प्रकार का और मटेरियल होता, मान लीजिए 1.5 और होता, तो ये इसको फिर क्या कर देते हैं हम, जो आपका रेट आएगा दैट इज कॉल्ड इशू प्राइस ऑफ द मटेरियल, राइट। इसके बाद अगले जो मेथड्स हैं हमारे, ये हो गए हमारे क्या, एवरेज तक की बात हो गई। एवरेज के बाद अगला मेथड क्या बचता है आपका? सर इसके 2 पार्ट्स हैं। हाँ, एवरेज के भी 2 हैं, एक सिंपल एवरेज है, ये था आपका सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या कहता है कि जो आपकी टोटल वेट्स है, मतलब टोटल अमाउंट है, दैट विल बी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। जैसे मान लो इसमें टोटल वेट्स में क्या होगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। इफ इट इज 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, अगर आपके पास 3 प्रकार की है तो अगेन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। आप ऐसे भी कह सकते हैं क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, और ऐसे में रेट 1, रेट 2, रेट 3, तीनों को अलग अलग रेट में दे सकते हैं। और डिवाइड बाय हो जाएगा क्वांटिटी 1 जी क्वांटिटी 2 प्लस क्वांटिटी 3। बाय दिस यू आर गोइंग टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज, राइट। इसके बाद अगली जो बात आती है वेटेड एवरेज के बाद, मैं थोड़ा सा वैसे तो आगे चले गए हैं बस, बट एक बार इशू के सिस्टम में आपको बता रहा था किस प्रकार से आप इशू करेंगे, और चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ पे एवरेज तक चलिए, जो दो बाकी आपने 3 मेथड रह गए हैं उनको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, यहाँ पर तक पहुँच गए हम लोग। जनवरी 10 के बाद अगली पोजीशन आती है हमारी कब, जनवरी 11। अगेन 300 यूनिट्स वर रिसीव, 300 यूनिट्स वर रिसीव। रेट क्या है 2.10, 2.10 630। यहाँ कुछ नहीं आएगा आपका, बैलेंस हमारे पास 200 यूनिट्स का ऑलरेडी है 500 के हिसाब से, और एक ये हो रहा है 10630। इसके बाद 11 डेट देखेंगे। 11 के बाद जनवरी 16, जैन 16 को आप अगेन यू हैव इशूड कितनी इशूड ये यूनिट 200 यूनिट इशू की हैं, और इसमें ये 2.5 के हिसाब से इशू हो जाएंगी। बैलेंस आपका यही बच जाएगा, ये 630 का आपका बैलेंस बच जाएगा, राइट। इसके बाद जनवरी 16 के बाद आ जाएगा क्या आपका, जनवरी 18 में क्या है, अगेन आपका इशू है 200 यूनिट्स का, तो रिसिप्ट में कुछ नहीं आएगा, 200 यूनिट इशू होगी इसमें 2.10 कितना हो गया 420, बैलेंस कितना हो गया 100, और यहाँ पर हो गया जी 2.10। जनवरी 18 के बाद आ जाओ जी, आप कितना हो गया जनवरी 20। जनवरी 20 में अगेन आपको पास रिसिप्ट है, कितनी यूनिट्स का रिसिप्ट है 600 यूनिट्स 2.20, तो ये 1320 रुपये हो गए, इधर कुछ नहीं आएगा। बैलेंस 100 यूनिट का 2.10 एज इट इज 210 रुपये आ गया, और ये आपकी हो गई 600 यूनिट्स 2.20
1322 ये आपके बैलेंस है। अब जनवरी 20 के बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्या, जनवरी 26। जनवरी 26 को हमने 800 यूनिट्स हमारे पास अगेन रिसीव्ड हुई हैं। रेट 2 है, 2 रुपीज यूनिट का रेट है, 16 रुपये में। बैलेंस क्या होगा 100, 2.10, 210, ये 600, 2.20, 1320 और उसके बाद 800 rupees, 1,600. These three types of material we are having on 26. सर 6 को डार्क करो थोड़ा, इसमें कम दिख रहा है। 6 को डार्क करो। 6 कोई नहीं डार्क और उसको जनवरी 26 के बाद है जनवरी 27। जनवरी 27 को हमने वी हैव इशूड 400 यूनिट्स। अब 400 यूनिट्स में हमें देखना पड़ेगा, 100 यूनिट्स तो यहाँ से आ जाएंगी, ₹2.10। उसके बाद 300 यूनिट्स से आएंगी, 2.20 कितना हो गया 660। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर रहेगी 300 यूनिट, 300 यूनिट्स 2.20, ये 60 ये 1060। इसके बाद अगला आता है जनवरी 27 के बाद जनवरी 31, 500 यूनिट्स अगेन इशू। यूनिट्स आपके पास रिसीव्ड हुई, इशू हुई है, इशू हुई है तो हमने क्या करना पड़ेगा, 300 यूनिट्स तो आपके यहाँ कुछ नहीं आएगा, 300 यूनिट्स आपके 2.20 और 200 यूनिट्स इसी से ली जाएंगी। ₹2 में 400 और ये आपके हो गए 600 यूनिट। This is your store ledger under FIFO method, and we are also going to try to clarify the LIFO, HIFO and average stock। और एवरेज में भी दो प्रकार के, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। इसके बाद अगले मेथड की तरफ मूव करेंगे, वो आपका है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड का मतलब क्या होता है, इफ ड्यू टू द चेंज इन द क्वांटिटी, due to the changes of the weather conditions or climate, if the cost of the material, or you can say the weight of the material is decreases, then we will issue the material to the stores with a inflated price. For example, we purchase 500 quantity of a particular item at ₹10 per unit, means 5,000. Yes. If due to change the climate, the weight is loss is 10%. 5 यूनिट का जो है हमें लॉस हो गया, 10% मतलब 50 यूनिट्स। Now we are having 450 units. It means we are going to charge 5,000 cost on 450 यूनिट्स। पहले तो 500 यूनिट आई कितने की, 10 रुपए के हिसाब से,
लेकिन अब वही 5000 की कॉस्ट में कितनी आ गई 5450। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ जो इशू मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट मीन्स इन इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड यू विल इशू द मटेरियल अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेटेड प्राइस रेट। ये हमारा बाकी जो रिमेनिंग चीजें हैं वो सेम रहेंगी। इसके बाद है नेक्स्ट मेथड आता है हमारा Specific price. स्पेसिफिक। देखिए, वी विल अंडर द स्पेसिफिक प्राइस सिस्टम वी विल आफ्टर एनालाइजिंग द कॉस्ट वी विल मेंटेन अ स्पेसिफिक रेट फॉर इशूइंग अ मटेरियल टू ए पर्टिकुलर जॉब ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एनालिसिस। और जो स्पेसिफिक रेट दिया हुआ है आप उसी के आधार पर इशू करेंगे और बाकी जो बैलेंसेस जो हैं उसी हिसाब से मेंटेन करते रहोगे बेसिक पैसे आपको माइनस करने के बाद। इसके बाद क्या है, बेस स्टॉक मेथड। बेस स्टॉक मेथड क्या कहता है कि यू विल मेंटेन ए specified number of quantity in your store. It means you cannot issue the material over and above the base limit. एक लिमिट फिक्स कर दी है 400 यूनिट की, 500 यूनिट की, जो भी कंपनी ने अपने कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स के कंसर्न के साथ फिक्स की है, उससे नीचे आप कभी भी स्टॉक के बैलेंस को, स्टोर के बैलेंस को कम नहीं होने दोगे। इट मीन्स उस क्वांटिटी से नीचे आप मटेरियल को जारी नहीं करोगे जब तक कि नई क्वांटिटी ना आ जाए। ये इसके बाद अगला जो मेथड आता है हमारा, उसमें हमारे आते हैं स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। और स्टैंडर्ड में भी, स्टैंडर्ड तो आप जानते हो, स्टैंडर्ड मीन्स व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ए स्टैंडर्ड प्राइस for the efficient or you can say for maintenance of a stock with proper care। हम एक स्टैंडर्ड प्राइस मानकर चल देते हैं कि भाई अगर हम प्रॉपर केयर रखेंगे तो हमारे मटेरियल की लागत ये बनी रहेगी। और उसमें भी हमारे जो स्टैंडर्ड प्राइस हैं, वी हैव टू टाइप्स, एक है करंट स्टैंडर्ड प्राइस और दूसरा क्या है आपका बेस स्टैंडर्ड प्राइस। और इनको समझने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, वी हैव मार्केट प्राइस मेथड्स टू अंडरस्टैंड दीज मेथड्स। मार्केट प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस को समझने के लिए हमारे पास दो तरह के, एक तरह से मेथड्स हैं, उनको समझने में यूज़ करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी, रिप्लेसमेंट मेथड और मार्केट प्राइस मेथड। इसमें क्या होता है, सारी चीजें सेम रहेंगी बट द चेंज इज दैट Issue one. नो, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट यू आर गोइंग टू इशू टू ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज एट व्हाट रेट, द रेट विल बी अकॉर्डिंग टू द प्राइस अवेलेबल at the same time in the market for the same material. It is called replacement of material cost। कि अगर आप इसी मटेरियल को अगर आज के दिन मार्केट से खरीदने जाओगे तो उसका रेट क्या है, उस आधार पर आप इशू करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग डेट्स पर जब हम मटेरियल इशू करने जा रहे हैं तो उसका रेट आपको दिया होगा कि दिस इज द मार्केटिंग प्राइस ऑन इशूइंग डेट। तो दैट इज टू बी फॉलोड while issuing the material to the concerned department, right? इसके बाद आता है बेस स्टॉक, सॉरी, इसके बाद आता है स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस में क्या होता है कि ए पर्टिकुलर प्राइस इज फिक्स्ड फॉर इशूइंग द मटेरियल एक्सेप्ट और विदाउट कंसीडरिंग the rate of receipt of the material।
कुछ भी रहे रेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, चाहे 2.5 है या 2.10 है या 2.20 है या 20 है, वी विल इशू ए पर्टिकुलर रेट, फॉर एग्जाम्पल 5, तो 5 रुपए की रेट पर ही सारी क्वांटिटी को इशू किया जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टोर लेजर, एंड थैंक्स अगेन. वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर.